अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है? स्प्लिट करना। तो मतलब ये वाली बैरियर को बढ़ा देना, ठीक है ना? सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? The energy barrier between these two is represented by delta naught. Between Eg and T2G, the energy barrier it is represented by delta naught. तो कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए एनर्जी खुद ही हाई होती है, वो आराम से स्प्लिट मतलब वीक फील्ड लिगेंड के भी प्रेजेंस में वो स्प्लिट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो बैरियर कम होना चाहिए, बैरियर कम होना चाहिए तो वीक फील्ड लिगेंड स्प्लिट करा दे। बैरियर कम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं कर जाएगा, फिर स्प्लिट कहाँ से हुआ? बैरियर कम हो गया मतलब सबको डीजनरेट हो गया ना। बैरियर ज्यादा रहेगा तो ही तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिफिकल्ट होगा। वीक फील्ड लिगेंड होने पे कैसे? वीक फील्ड लिगेंड तो कुछ भी नहीं करेगा। नहीं, आपने बोला ना कोई कोई मेटल्स का, हाँ, कोई कोई मेटल्स का बैरियर ही स्ट्रांग होता है। ये स्प्लिटिंग हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, दिस इज वन ऑफ द वे। द अदर वे इज कि द बैरियर इटसेल्फ इज लार्ज, तो ऑलरेडी स्प्लिट है ना, like s orbital and p orbital, p and d, so there is some energy gap, so the first electron will go into p, then only it will go into d, so this is naturally splitting it. So write it down, the crystal field splitting energy is large for second and third row ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आया? सेकेंड एंड थर्ड रो के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, फॉर देम दिस डेल्टा नॉट इज लार्ज। एंड फॉर मोर हाईली चार्ज्ड स्पीशीज, एज आई वाज टेलिंग, इफ द चार्ज ऑन सेंट्रल एटम इज हाई, if the charge on the central metal atom is more, तो भी splitting बढ़ जाती है d orbital की। okay, full stop. Next point, all the complexes of pt plus 2 and AU plus 3, all the complexes of PT plus 2 and AU plus 3 are square planar, including those with weak field ligands, including those with weak field ligands. समझ में आया? Got it? अच्छे से? Okay. I'll give you few examples. उनका ज्योमेट्री बता दो मुझे। Okay. Next is K4 FeCN6 and K3 FeCN6. K4 efficiency What happened? K4 efficiency किया था, इसकी ज्योमेट्री की थी। K3 FeCN6 किया था। नहीं तो ये करके मुझे बताओ कि ज्योमेट्रीज क्या होंगी। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा हाई स्पिन है, कौन सा लो स्पिन है, सब करके बताओ।
what is the hybridization and all everything. 2 minutes. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? K4FeCN6 में in case of Fe 2 plus. यहाँ पे in second case it is Fe 3 plus. So what is the electronic configuration in this case? 1s2, 2s2, हाँ, 3s2, okay, 3d6. So we're not worried about all of these. So 4s0. So 3d6. यहाँ पे क्या होगा? इस केस में एक मिनट का 2s2 2p6 3s2 3p6 3d. Okay. So in this case, the ligand is strong field ligand. So what will happen? Pairing हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. Now these two will remain vacant. How many ligands? 6 ligands. 2 यहाँ पे गए, S में आ गया, और बाकी के 3 P में गए, 4P. Right? So what will be the hybridization? It is B2sp3. What will happen in this case? 3D है ना, 3D5. 1 2 3 4 5. Pairing हो जाएगा because of the presence of the strong field ligand, but एक बाकी रहेगा. तो जो 6 ligands रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे 4s and then P. So it is B2 sp. So getting it? So again the geometry is going to be octahedral, but यहाँ पे there is one high spin, यहाँ पे because there is no ऐसा free electron, all are free. ठीक है ना, समझ में आया? Okay. Now crystal field theory also helps you in understand कि why transition complexes, transition metals जो complex बनाते हैं, they are colored in nature. Okay. So the splitting of d orbital 1 2 3 4 5 in T2g and Eg जो अभी just थोड़ी देर पहले explain किया था, we'll consider the electronic configuration for D1. D1 means एक electron. ठीक है ना? This is the ground state. Now what happens is ये एक electron अगर energy ले लिया, it will absorb energy and then it will move on to the higher state of empty. This is T2g and this is Eg. So when it moves from this state to this state, वो एनर्जी absorb कर रहा है. तो अगर एनर्जी absorb कर रहा है तो मतलब रेडिएशन, we go by this principle only, E equals to h nu, that is nothing but hc by lambda. और ये जो बैरियर रहता है ना एनर्जी E, इसके corresponding जितने भी लैम्डास आते हैं, they all most of them they lie in the visible range. अपना visible range क्या है? 76002. नहीं वो तो वैल्यू हो गया, कलर बोल रहा हूँ, 7 कलर्स corresponding वो कौन कौन से हैं? B I B G Y O R 7 ना. So एक सर्कल बना लो and then 1 2
अंडरस्टैंडिंग VIBGYOR, ये नॉर्मल प्रिंसिपल है। अगर वो जो लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, इफ इट लाइज इन वॉलेट का रेंज, तो तुम्हें कलर कौन सा दिखेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री अराउंड ग्रेनिश, थोड़ा सा ब्लूइश टाइप में दिखेगा या फिर थोड़ा सा येलो के टाइप में।